السلام علیکم عزیز طالبات، سال دوم پری میڈیکل ایف ایس سی سیکشن ہے۔ ہمارا سبق بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا ہوائی، جو کہ سفر نامہ ہے جزیرہ ہوائی کا، اسے ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس کا بقیہ حصہ ہم مکمل کریں گے۔ اس کو جب ہم نے شروع کیا تو اس میں بیگم اختر ریاض الدین نے بتایا ہے کہ وہ ہوائی پہنچی تو ہوائی کے سفر کے حوالے سے انہیں مختلف افراد نے مختلف طریقوں سے ڈرایا تھا۔ خیر جب وہ وہاں پہنچ گئی ہیں، میاں لیٹ آئے ہیں، گھر پہنچی ہیں، گھر بہت گندا ہے۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ جب ہوائی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے نکلی ہیں تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اسی طریقے سے اب جب وہ سپر مارکیٹ گئی ہیں تب ان پہ کیا بیتی یہ اب آپ دیکھیں گے۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ اب آنکھیں کھلنا یعنی وہ حیرت سے کہ اتنی چیزیں، اور بٹوے کھلنا مطلب ہے کہ وہ فوری طور پہ خریداری کی طرف عورتیں مائل ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، گاڑی بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ نرسری کہا جاتا ہے پرورش گاہ کو، یعنی جہاں پر بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی ہر قسم کی آسائش ہے، آپ تسلی سے جتنا مرضی خریدیں۔ اسی سبق میں ہم نے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ در حقیقت امریکہ کے سرمایہ داری نظام کا ایک نمونہ ہے، اور سرمایہ داری نظام ہے ہی یہ کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں تو دیوانہ وار اسے خریدنے کی طرف بھاگ پڑیں، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنا آپ ہی گروی کیوں نہ رکھنا پڑ جائے۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلا سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باقی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اب میاں نے جتنی گھر کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری تقریباً خریدی ہوئی تھی۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم۔ اب ان کے میاں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ کتنا گھر بار چلانے والے ہیں، چنانچہ وہ حیران ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیسے کیا، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا، ایک دکان کے وسیلے سے یہ ہوا ہے۔ اور دکان وہ کون سی ہے؟ جس میں غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے جو چلائی گئی ہے، یعنی وہاں سے جب آپ چیز خریدتے ہیں تو اس کے جو پیسے ملتے ہیں وہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو ٹیچر فرنیچر سے بھر لیا۔ کار 1857 کا ماڈل تھی۔ اب یہ سچ مچ نہیں 1857 کا ماڈل ہوگی، مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ انتہائی پرانی تھی، کہ وہ اتنی پرانی تھی کہ جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پورے اسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے، ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس گاڑی کی صورتحال جیسی تھی ویسی ہی بقیہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ان کے میاں نے اپنے گھر میں بھر لی تھی۔ اب جو کام بانٹے ہیں، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ یعنی اب ان سب نے جو مختلف کام بانٹے ہیں ان میں ماں اور بیٹی نے اپنے اپنے کام لے لیے ہیں، اور شوہر نے فوراً کہا ہے کہ ہم تم دونوں کی ڈرائیوری میں کروں گا، اور اس کام کے لیے وہ خوش بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میاں کے یہ کہنے سے ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب گاڑی چلانے لگے ہیں، آپ کے پاس گیئر جو ہے، بریکس جو ہیں، ایکسیلیٹر جو ہے، یہ ساری چیزیں کم از کم مانوس ہوں۔ یقینی بات ہے ہر گاڑی کا تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈھانچہ ویسا ہو تو آپ کو چلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ میں اس کم بخت کو نہیں چلا سکتی تھی، کیونکہ اس کم بخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سروپا۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سرے کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، دو دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے۔ ترمرے کہتے ہیں دھبوں کو۔ یہ کبھی ٹی وی ایل ای ڈی یا اب جو ایل سی ڈی ایل ای ڈیز جو چل رہی ہیں، ان میں اگر پیچھے سے کیبل کی کنیکشنز نہ آ رہے ہوں تو سامنے جو سفید اور کالے چھوٹے چھوٹے دھبے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ سفید کالے ترمرے جو ناچنے وہ بند ہو جاتے ہیں۔
फिर घंटों सही चलता जब तक कि चैनल ना बदले। चैनल बदली और फिर वही धमोके, थप्पड़, गर्म पानी की बोतल, वो फिर चल पड़ा। यानी अब वो हमें मुख्तसर अंदाज में, पुरमज़ा अंदाज में अपने मियाँ की ली हुई चीज़ों के हवाले से बयान कर रही हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें चलाना बहुत मुश्किल है। चल पड़ी हैं फिर तो चलती ही रहती हैं, लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है वो इंतहाई मुश्किल है। तो साहिब ये तो हवाई का इज़दवाजी रुख था, यानी घर की ये सूरत हाल थी, मियाँ बीवी और घर का जो मामला था। कह रही हैं कि ये तो मैंने अब उसे बयान किया है। अब तन घरस्तन माँ यानी सलीका शार माँ बीवी बोल रही थी, लेकिन यह घरस्तन माँ बीवी दो वक्त बल्कि अगले 2 दिन का इकट्ठा खाना पकाकर रेफ्रिजरेटर में भरकर आज़ादी का सांस भी लेती थी। अब साथ ही उन्होंने अपने लिखे हुए लफ्ज़ का खुद ही मसा लिया है। उन्होंने कहा गृहस्थन माँ बीवी, और साथ ही उन्होंने इस लफ्ज़ के बारे में और इस पूरे फ़िक्रे के बारे में लतीफ़ अंदाज में बयान किया है कि मैं कह तो रही हूँ कि मैं बड़ी सलीका शार बीवी हूँ, लेकिन मेरा सलीका ये था कि मैं इकट्ठा खाना 2 दिन का बाज़-औक़ात बनाती और रेफ्रिजरेटर में रखकर आज़ादी का सांस लेती थी कि अब जहाँ मर्जी जाऊँ। आहिस्ता जगह जगह सैर पर खुद निकल जाती थी। लाइब्रेरियों से गोद भर भर कर जज़ायर हवाई बल्कि सारे बहरुल काहिर के जज़ायर पर किताबें लाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकात, प्रोफेसर साहिबान से गुफ्तगू, सयाहों और तलबा से मेल जोल, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने के मुख्तलिफ मदारिज यानी जो मुख्तलिफ कैफियात हैं वो उभरना शुरू हो गई। उसकी हमागू ज़िंदगी की चाशनी का चस्का लग गया था। उसकी हमागू यानी हर तरह की जो उसके अंदर ज़िंदगी थी, उसकी मिठास का चस्का कहती हैं कि मुझे लग गया था, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पे इस वक्त वो मौजूद थे। हवाई में अमेरिका की फ़ेडरल हुकूमत ने एक अजीम शान मरकज़ खोला है जिसे ईस्ट वेस्ट सेंटर कहते हैं। इसकी हसीन हदूद और अमारात में मगरिब और मशरिक़ के आला मदऊ किए जाते हैं। अब आप नाम पे गौर कीजिएगा, ईस्ट वेस्ट यानी मशरिक़ और मगरिब का सेंटर, यानी वैसी जगह जहाँ पर मशरिक़ और मगरिब दोनों जगह से उलमा को बुलाया जाता है, जो सीनियर स्कॉलर कहलाते हैं। वो मरकज़ के खर्च पर आते हैं। 1200 डॉलर का वजीफ़ा हर महीने पाते हैं। इस नन्हे से वजीफ़े में एक ख़ानदान ठाठ कर सकता है, यानी बज़ाहिर ये एक थोड़ा सा वजीफ़ा लग रहा है, लेकिन कहती हैं कि ये इतना होता है कि इससे एक ख़ानदान ठाठ से रह सकता है। 10 महीने या साल कोर्स की मियाद होती है। इस दौरान में जो मर्ज़ी आए कीजिए, पढ़िए लिखिए, रिसर्च कीजिए, तासरात कलम बंद कीजिए, कोई पाबंदी नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई वक्त नहीं। मेरी मियाँ इस आज़ादी पर मगन थे। आपका आरामदेह कमरा, टाइपराइटर, गुसल खाना, बेहतरीन लाइब्रेरी, साथ ही सस्ता और मज़े का रेस्टोरेंट, इर्द गिर्द लड़के लड़कियाँ, आज़ादी की फ़ज़ा। अक्सर आलम सिगरेट का धुआं और गप उड़ाते पाए जाते हैं, यानी अक्सर ये होता कि वो सिगरेट पी रहे हैं और गपशप कर रहे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं। कुछ आलम किताबें भी लिख जाते जो ये मरकज़ अच्छा, अब ये पीछे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया। इर्द गिर्द लड़के लड़कियाँ, आज़ादी की फ़िज़ा, अक्सर आलिम सिगरेट का धुआं और गप उड़ाते पाए जाते हैं। अक्सर जो उलमा थे यहाँ आते, वो सिगरेट पीते हुए और आपस में बातचीत करते हुए नज़र आते, लेकिन कोई भी रिपोर्ट करने वाला नहीं था। कुछ ऐसे भी थे तालिबे इल्म जो कि लिख भी जाते थे और उस पर यह मरकज़ बहुत फ़ख्र करता था। अब किस किस बच्ची का दिल चाहता है काश हम अपने कॉलेजेस की बजाय यहीं पे पढ़ रहे होते और मज़े से वहाँ बैठ के इन सारी आज़ादियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऐसा ही है ना जी? आगे चलिएगा। हाँ, तो ईस्ट वेस्ट सेंटर और हवाई की यूनिवर्सिटी में यूँ तो अर्ज़ी गुर्बत है, लेकिन अज़ली रकाबत भी है। अब हवाई की यूनिवर्सिटी और ईस्ट वेस्ट सेंटर, ये अर्ज़ी गुर्बत है। अर्ज़ी गुर्बत यानी ज़मीनी लिहाज से ये बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन असली रकाबत है, यानी शुरू से ही इनके दरमियान रंजश भी है। अब रंजश ये बुराई वाली नहीं है, ये सेहतमंद है। अमेरिका के बेहतरीन प्रोफेसर आला जहन सर्दी गर्मी लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं। अब बल्कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इस रकाबत के लफ्ज़ को जहन में रखिएगा। रकाबत यानी कि हसद का जज्बा, दूसरे पे देख के उस पर रश करने का जज्बा जो होता है, ये आपके लिए उस वक्त सेहतमंद बन जाता है जब आप दूसरे की अच्छाई देख के
अपने अंदर भी वही अच्छाई लाना चाहेंगे। और मुसन्निफ़ा यहाँ पे यही बात बताती हैं कि ईस्ट वेस्ट सेंटर और हवाई यूनिवर्सिटी के दरमियान ऐसा ही रश का जज्बा है जिसकी बिना पर वो एक दूसरे पे सबकत ले जाने के चक्कर में अपने आप को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ प्रोफेसर्स बुलाए जाते हैं, वो मौसम सरमा और मौसम गर्मा के हवाले से वो अलग अलग जो हैं उनके टाइम पीरियड्स हैं जिसमें वो आते हैं और लेक्चर देते हैं। तरह तरह की नुमाइशें, फ़िल्म, जश्न मनाए जाते हैं उसकी जदीद इमारात के सामने। लंबी से लंबी मोटरें जो आधी तलबा की और आधी प्रोफेसरों की होती हैं, अमेरिका की अफराद का सही सबूत है। इस मगरिब और मशरिक़ के मरकज़ का एक जापानी बाग देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे यानी जो एक बाग बनाया गया है जापानी, ये इतना ईमान शिकन है कि मैं अक्सर लाइब्रेरी जाते जाते इसमें घुस जाती हूँ। यानी कहती हैं कि मेरा जाने का मकसद होता लाइब्रेरी, लेकिन मैं बजाय लाइब्रेरी जाने के इसमें जा बैठती। इस कदर ये खूबसूरत बाग था, ये मुझे मेरे काम से रोक देता। जज़ायर टहीटी के फूल, खुसूसन गार्डनिया, जर्द चमेली, कंवल, कच्चा कच्चा सब्ज़ा, ठंडा पानी और रंगीन मछलियाँ, उसकी पुश्त पर मुतनफ़ दरख्तों का ज़ख़ीरा। क्या खूबसूरत मंजरनामा है जो डॉक्टर बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने हमारी आंखों के सामने खींच के रख दिया है। और ये किसी भी मुसन्निफ़ की खूबी है कि वो मंज़र जब आपकी आंखों के सामने खींचे तो आप हकीकत में वहाँ पर अपने आप को मौजूद पाएँ। और ये हकीकत है कि बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने ऐसे खूबसूरत अंदाज में इस पूरे जजीरे का नक्शा खींचा है कि दिल चाहता है काश हम भी वहाँ जाएं। इस ईस्ट वेस्ट सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटी का मीलों में फैला हुआ अहाता भी एक दीदा ज़ेब सब्ज़ाज़ार है। हर कदम पर गुल आवेज़ा रफ्शें और बदतदरीज बाड़ें, लेकिन इसके अलावा जो सबसे दिल पजीर उनसर इस फ़ज़ा में पाया जाता है वो था बैनुल अक़वामी तलबा का रब्ता। कहती हैं बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी, बड़ी अहमियत की हामिल, कि खूबसूरती वहाँ बेपनाह है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ वहाँ है वो है वहाँ मौजूद बैनुल अक़वामी तलबा का आपस में मिलना जुलना। बहरुल काहिल से लेकर जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, फ़िलिपाइन, कोरिया, वियतनाम, फिजी के जज़ायर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के जवां साल जुआइंदगान इल्म यानी इल्म के जो मुतलाशी हैं, ये सारे के सारे यहाँ आते। यह माशरती तनव भी एक तालीमी हैसियत रखता था। अब आप इस आखिरी लाइन में पे गौर कीजिएगा। इतने ममालिक के जब तालिब इल्म इकट्ठे होंगे, उन्होंने वो तो पढ़ना है जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी हर मुल्क का तालिब इल्म अपनी तहजीब का, अपने तमद्दुन का, अपनी सकाफ़त का, अपनी ज़ुबान का आइनादार है। अब जब मुख्तलिफ़ ममालिक के इतने अफराद इकट्ठे होते हैं, वो अपनी अपनी सकाफ़त लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी सकाफ़त की तरसील होती है। वो अपने अपने इलाके के दर हकीकत नुमाइंदे हैं, और ये नुमाइंदे जब आपस में मिलते हैं तो ये भी दर हकीकत तालीमी ही एक मैदान है जिससे सीखने का बहुत खूबसूरत मौका मिलता है। ये जी हमारा सबक मुकम्मल हुआ। धनक पर कदम से लिया गया ये सबक है। अगर आप चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा ये सफ़रनामा, बहुत खूबसूरत, और इसे पढ़ते हुए किसी भी लम्हे आप बोर नहीं होते और आप इसे पढ़ते चले जाते हैं। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने ये का लिखा हुआ ये जो सबक है, इसके खुलासे को आप तैयार करेंगे। इसके साथ साथ सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह, सियाक़ो सबाक़ के बारे में बात करती हूँ। सबक का नाम हो गया हवाई, मुसन्निफ़ बेगम अख्तर रियाजुद्दीन है, माखज़ इसका धनक पर कदम है, और यह सिन्फ़ अदब है सफ़रनामा। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन अपने मियाँ के पास जाने के लिए जहाज़ पर सवार हुई तो उन्हें मुख्तलिफ़ लोगों ने तरह तरह से डराया कि हवाई का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक है। अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया और उनकी दुआएं कबूल हुई। सफ़र इंतहाई अहसन तरीके से मुकम्मल हुआ। जब वो हवाई पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ के साहिलों का बहुत खूबसूरत रंग पाया। ऐसे साहिल बेगम अख्तर रियाजुद्दीन कहती हैं कि मैंने पहले बहुत कम देखे थे। वहाँ की सुपर मार्केट अमरीका के सरमायादाराना निज़ाम का मुँह बोलता सबूत है।
मुसन्निफ़ा ने हमें ईस्ट वेस्ट सेंटर और हवाई यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया है कि उन दोनों के दरमियान अर्जी कुर्बत लेकिन असली रकाबत है। ईस्ट वेस्ट सेंटर में मशरिक़ व मग़रिब से स्कॉलर्स बुलवाए जाते हैं जो वहाँ आकर तहकीक करते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक से मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों का आना दर हकीकत तालीमी लिहाज से ख़ुद भी बहुत बड़ी बात है। ये जी इसका सियाक़ो सबाक़ मुकम्मल हुआ। अब कल इंशाल्लाह आपसे ये सारा इसके बारे में आपसे बातचीत की जाएगी, सुना जाएगा और आपने इसका सियाक़ो सबाक़ आखिरी पैराग्राफ को जहन में रखते हुए सियाक़ो सबाक़ आप लिखेंगे और मुझे आप इसे व्हाट्सएप करेंगे। मज़ीद आप इसके बारे में देख लीजिए, जो आपने पूछना है वो आप बताएँ दें।